Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English text class. Students, as you know that we have started lesson number 3, awareness of crisis, accidents and natural disaster. Okay, and we have read some part of it. हमने इसका कुछ part पढ़ लिया था and you will have to open page number 46. And what is the text? The text is about in which we study about there is a boy Zubair who actually he lost his mother, जिसने अपनी mother को खो दिया था in a flood. जब flood आया था and how he felt, कैसे उसने feel किया था, सारी उसकी feelings, उसने अपने आप को किस तरह वो rescue हुआ था, किस तरह लॉक पे जो है उसने होल्ड कर रखा टाइटली, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर जो है वो लॉस्ट हो गई थी एंड ही वॉज मिसिंग हिज मदर, बहुत ज़्यादा अपनी मदर को मिस कर रहा था एंड कॉलिंग हिज मदर अम्मा अम्मा अगेन एंड अगेन, बट ही फाउंड नो रिप्लाई, उसको कोई जवाब नहीं मिला था बिकॉज ही वो जो है वो उसमें पानी में डूब चुकी थी. So now we proceed, we come to the paragraph number 4. 4 पे आते हैं. First I will read the paragraph and then I will explain you. Let's begin. What's up people, woke him up. He opened his eyes to find himself on the same tract of land. In the dim light of the setting sun, he could see soldiers sailing in a boat on the somewhat still water. They were coming towards him. He stared at them without moving. He was so sad and tired that he did not realize that the soldiers were coming to save him. The soldiers took him to a relief camp. The camp provided shelter, food and medicines for the hundreds of flood victims. He moved around the camp like a ghost. His head was full of questions. Why do they let this happen every year? Why don't they have a plan? Can we do something ourselves to save other young boys from becoming orphans? He discussed this with some of the relief workers, but they were so busy and tired that they did not have time to answer his questions. Finally, a young relief worker listened to him and understood what he was saying. Together, they planned to train the victims to be more cautious next time. Together, they planned to train the victims to be more cautious next time. They worked out some points that could help people remain safe in such calamities. Together, they wrote the points on a large white bed sheet. After this, they gathered a group of people and told them about ensuring safety during floods. Here are some of the points that they shared with the people before a flood, during a flood, after a flood. So, always listen to the radio or television for flood information. Be prepared, pack a bag with important items in case you need to evacuate your home. If the government tells you to evacuate, do so immediately. If a flood is expected, move immediately to higher ground. Turn off and disconnect all electrical things. During a flood, if you have to walk in water, try to walk where the water is not flowing. As little as 6 inches means 15 centimeters of flowing water can make you fall. Use a stick to check the firmness of the ground in front of you. Hold the hands of children and old and weak people when walking in water. Only carry the most important things when leaving your house during a flood. Do not touch electrical things if you are wet or standing in water. After a flood,
Return home only when you are told that it is safe. Wash and clean everything in your house. Drink water that is safe to drink. Stay away from fallen electric lines and report them to the power company. Avoid bathing or walking in flood water. So this is enough. This will be enough for today. I stop here. So voices of people woke him up. As you know that he was so exhausted and tired, तो he fell asleep. Once again, in the last paragraph यहाँ लिखा हुआ भी है कि वो सो गया था. जो ज़ुबैर था वो बहुत exhausted हो गया था. But how he woke up again. वो कैसे जो है वो दोबारा जागा. Voices of people जो इसके इर्द गिर्द जो लोग थे उनकी आवाज़ों से वो जाग गया. He opened his eyes. उसने अपनी आँखें खोली. To find himself on the same tract of land. और उसने अपने आप को कहाँ मौजूद पाया. जब उसी लैंड पे मौजूद था वो जिस लैंड पे वो पहले था, यानी जहाँ से वो अपने आप को रेस्क्यू करके वाटर से लैंड पे पहुँचा था. इन द डिम लाइट मीन्स क्या है. इन द डल लाइट, बहुत ही हल्की रोशनी थी. ऑफ द सेटिंग सन, बिकॉज द सन वॉज सेटिंग, यानी सूरज उसको ग्रूव हो रहा था. तो he could not see soldiers sailing in a boat on the somewhat still water. तो वो बस उसमें उसको क्या नज़र आया. कुछ सोल्जर्स को देखा वो सेल कर रहे थे. सेल का मतलब होता है, सेलिंग मीन्स होता है टू ट्रैवल ऑन वाटर. इन अ बोट. किस में ट्रैवल कर रहे थे. ऑब्वियस दैट बिकॉज देयर इज़ वाटर एवरीवेयर. तो बोट में ट्रैवल कर रहे थे ऑन द समवॉट स्टिल वाटर, क्योंकि इस वक्त जो है वो वाटर कैसा था. स्टिल वाटर था, यानी नॉट मूविंग नहीं था, गशिंग वाटर नहीं था. दे वर कमिंग टूवर्ड्स हिम. और वो किसकी तरफ आ रहे थे. फ्रॉम वेयर, यानी किसकी तरफ आ रहे थे. दे वर कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसी की तरफ, यानी ज़ुबैर की तरफ आ रहे थे. ही स्टीयर्ड. उसने ही स्टीयर्ड एट दैम. स्टीयर्ड मीन्स होता है घूरना, यानी वो विदाउट, यानी ब्लिंकिंग ऑफ आई, वो उनको देख रहा था, गेजिंग कर रहा था विदाउट मूविंग, बगैर किसी हरकत के. ही वॉज सो सैड, क्योंकि वो बहुत दुखी था. एंड टायर्ड, और मज़ीद ये कि वो थका हुआ भी था, एग्जॉस्टेड था, फैडअप था. डैट ही डिड नॉट रियलाइज, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, रियलाइज, वो समझ नहीं कर सका दैट द सोल्जर्स इज कमिंग टू सेव हिम, कि सोल्जर्स जो बोट में आ रहे हैं स्टिल वाटर में, वो जो है वो उसको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. द सोल्जर्स टुक हिम टू द रिलीफ कैंप, टू आवर रिलीफ कैंप. जो अब रिलीफ का मतलब क्या होता है. रेस्क्यू करना. जो तिब्बी इमदाद के जो मरकज़ होते हैं, जो ज़ाहिर से जो विक्टम्स होते हैं, मुतासरा अफराद होते हैं, जो विक्टम्स का मतलब पर्सन हु हैज़ बीन अटैक्ड और इंजर्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सीडेंट या फ्लड की वजह से जो लोग मुतासर हो जाते हैं, तो उनको किसी कैंप में, किसी जगह पे रखा जाता है. टेम्प्रेरी प्लेस होती है जहाँ पर लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे. रिलीफ कैंप होता है, उसमें क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई थी. द कैंप प्रोवाइडेड शेल्टर, एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे, एक जगह दे रहे थे, फूड, इसके अलावा वहाँ पर खाना भी दे रहे थे, एंड मेडिसिन. और जाहिर सी बात है कि सम विक्टिम्स वर इंजर्ड, और बीमार हो रहे थे. दे हैव सम डिजीजेस, तो उनको मेडिसिन भी दी जा रही थी फॉर द हंड्रेड्स ऑफ फ्लड विक्टिम. क्योंकि ये फ्लड था, ये किस वजह से मुतासर हुए थे, फ्लड की वजह से. तो इनको क्या कहा गया है, हमने इनको फ्लड विक्टिम्स का नाम दिया है. मैंने अभी आपको बताया कि विक्टिम्स का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ बीन अटैक्ड or injured as a result of some disease, some accident, या flood. He moved around the camp like a ghost. बिल्कुल वो ऐसी इधर उधर मूव कर रहा था जैसे कि एक घोस्ट होता है, एक समझ लीजिए जिन होता है या भूत होता है, इसकी तरह. यानी उसकी, बिकॉज ही वॉज नॉट थिंकिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं सोच रहा था. हिज हेड वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन, उसकी बस दिमाग में कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ सवालात थे. वाई डू दे लेट दिस हैपन एवरी ईयर. क्यों ये जो है, लेट का मतलब होता है पर टू परमिट, इजाज़त देना. तो वो ये सोचा था कि क्यों ये हमेशा जो है ऐसा हर साल होता है. वाई डोंट दे हैव अ प्लान, इनके पास कोई प्लान क्यों नहीं होता है गवर्नमेंट के पास. कैन वी डू समथिंग आवरसेल्फ टू सेव द
अदर यंगर बॉयज़ फ्रॉम बिकमिंग ऑर्फन्स। क्या हम कुछ कर सकते हैं खुद अपनी, यानी अपनी मदद कुछ आप कर सकते हैं दूसरे नौजवान लड़कों को, दूसरे लड़कों को यतीम होने से बचाने के लिए। ऑर्फन्स का मतलब होता है यतीम। ही डिस्कस्ड विद सम ऑफ द रिलीफ वर्कर्स। उसने ये अपने जो क्वेश्चन जो उसके माइंड में आ रहे थे, जो उसको कंफ्यूज कर रहे थे, वो रिलीफ वहाँ जो काम करने वाले लोग थे उनसे डिस्कस किए। बट दे वर सो बिज़ी, लेकिन वो लोग क्या थे, बहुत बिज़ी थे। एंड दे डिड नॉट हैव अ टाइम, उनके पास टाइम नहीं था टू आंसर हिज क्वेश्चन, उसके सवालात के जवाब देने का। फाइनली, आखिरकार, एट लास्ट, अ यंग रिलीफ वर्कर लिसन टू हिम। उसने एक यंग रिलीफ वर्कर ने उनकी बात सुनी एंड अंडरस्टूड, और समझ गया व्हाट ही वाज सेइंग, और वो समझ गया कि ये क्या कहना चाहता है, यानी ज़ुबैर क्या चाहता है। टुगेदर दे प्लान टू ट्रेन द विक्टिम्स टू बी मोर कॉशियस नेक्स्ट टाइम। यानी जो है उन्होंने टुगेदर, यानी रिलीफ वर्कर ने, जो यंग रिलीफ वर्कर था और ज़ुबैर ने मिलकर प्लान किया कि वो ट्रेन करेंगे, वो गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे विक्टिम्स को, कि ताकि वो जो है वो कॉशियस हो जाए। यानी कॉशियस का मतलब होता है अ केयर दैट यू टेक इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डैमेज और मिस्टेक, यानी ऐसी एहतियाती तदाबीर। यस मीन्स यानी केयरफुल, यानी एडजेक्टिव है ये, ताकि हम जो है वो केयरफुल हो जाएं। टू बी मोर कॉशियस नेक्स्ट टाइम के लिए, अगली दफ़ा के लिए। सो दे वर्कड आउट सम पॉइंट्स, उन्होंने जो है वो कुछ पॉइंट्स पे काम किया दैट कुड हेल्प पीपल रिमेन सेफ इन सच क्लैमिटीज़, और ताकि वो इन आफात से, जो कुदरती आफात हैं उसमें जो है वो सेफ रह सके, ताकि वो मदद कर, यानी ये पॉइंट जो है ना उन लोगों की मदद करेंगे ताकि वो इन आफात से महफूज रह सके। टुगेदर दे रोट द पॉइंट्स। अब इन्होंने कहाँ लिखे, बिकॉज दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने उस पॉइंट्स को प्रेजेंट करने के लिए एक लार्ज वाइट बेडशीट पे उसको लिखा, ऑन लार्ज वाइट बेडशीट्स पे उनको उन पॉइंट्स को लिखा। आफ्टर दिस, उसके बाद दे गैदर्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने लोगों को जमा किया, जो वहाँ पर जो लोग रेस्क्यू किए गए थे उन लोगों को जमा किया जो विक्टिम्स थे। एंड टोल्ड देम अबाउट इंश्योरिंग सेफ्टी ड्यूरिंग फ्लड। इंश्योर का मतलब होता है कि जो है टू मेक श्योर दैट हैपन्स और इज़ डेफिनेट, जो चीज़ हमें डेफिनेट हो, यानी जो यकीनी हो, सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए किस दौरान, फ्लड्स में। अच्छा, जो पॉइंट्स थे कि हमें वो पॉइंट्स क्या थे वो अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने इन पॉइंट्स को कुछ इस तरह डिवाइड किया कि हमें बिफोर अ फ्लड क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग अ फ्लड हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, और आफ्टर अ फ्लड हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो दे हैव डिफाइंड ईच एंड एवरीथिंग सेपरेटली। सबसे पहले जो था कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, दे शेयर विद द पीपल, उन्होंने अब लोगों से डिस्कस किए। वो थे बिफोर अ फ्लड में उन्होंने क्या बताया कि ऑलवेज़ लिसन टू द रेडियो और टेलीविज़न फॉर फ्लड इंफॉर्मेशन, यानी हम जो है हमेशा जो है वो रेडियो और टेलीविज़न, अगर जब स्पेशली जब मानसून का सीज़न होता है तो उस वक्त हम रेडियो टेलीविज़न सुने, ताकि हमें जो है उस फ्लड की इंफॉर्मेशन बताई जाती है तो हम उस पर अमल कर सके। बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिए। पैक अ बैग, एक बैग लीजिए जिसमें आप सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट आइटम्स, जो अपने घर की जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, उनको डालिए। इन केस यू नीड टू इवैक्यूएट फ्रॉम योर होम, यानी जब अगर अपना घर खाली करने, इवैक्यूएट मीन्स होता है टू लीव, अपना अबैंडन की मीनिंग में आता है, अपना घर खाली करने को कहा जाए। इफ़ द गवर्नमेंट टेल्स यू टू इवैक्यूएट, डू सो इमीडिएटली। अगर आपको गवर्नमेंट क्या है कि उस जगह को छोड़ दीजिए, कि वो कहते मुतासरा जगह है, तो फिर उसको ये काम आप फ़ौरन कीजिए। इमीडिएटली मीन्स होता है एट वंस, प्रॉम्प्टली। इफ़ अ फ्लड इज़ एक्सपेक्टेड, अगर फ्लड एक्सपेक्टेड है यानी मुतवक्के है, मूव इमीडिएटली टू हायर ग्राउंड, आप किसी ऊंची जगह पे, ऊंची टीले पे चले जाएं। टर्न ऑफ एंड डिसकनेक्ट ऑल इलेक्ट्रिकल थिंग्स, अगर आपके घर में कोई बिजली के इस्तेमाल की चीज़ें हैं तो आप उन सब को जो है वो टर्न ऑफ कर दीजिए, ताकि जो है वो करंट जो है वो उसका फ़्लो नहीं हो सके। देन अब ड्यूरिंग द फ्लड क्या करना चाहिए। ड्यूरिंग अ फ्लड, इफ़ यू हैव टू वॉक इन वाटर, ट्राई टू वॉक वेयर द वाटर इज़ नॉट फ्लोइंग। अगर आपको जाहिर सी जब फ्लड आता है तो देयर इज़ वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी होता है, तो आप जो है उस जगह वॉक करें जहाँ पर वाटर जो है वो बह नहीं रहा हो।
एज लिटिल एज 6 इंचज़ यानी 6 इंचज़ यानी अबाउट 15 सेंटीमीटर से कम वाटर हो, तो वरना इससे ज़्यादा होगा तो दिस फ्लोइंग वाटर कैन मेक यू फॉल, आपको जो है वो आप गिर सकते हैं, यानी आप उस पर यू कैन नॉट वॉक ईजीली। यूज़ अ स्टिक टू चेक द फर्मनेस ऑफ द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ यू। आप एक स्टिक रखें तो अगर कोई जो है समटाइम्स कोई डिच होता है या कोई गटर होता है, तो और जहाँ पर आप फर्मनेस ऑफ द ग्राउंड यानी ग्राउंड को महसूस कर सके, सख्ती को महसूस कर सके इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप इजीली चेक कर सकेंगे बाय यूजिंग स्टिक। होल्ड द हैंड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड ओल्ड एंड वीक पीपल व्हेन वॉकिंग इन द वाटर। अच्छा, अगर आपके साथ कोई बच्चे या बूढ़े या कमज़ोर लोग हैं तो उनका हाथ को थाम के रखिए जब किस में चल रहे हो, वाटर में। ओनली कैरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, सिर्फ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है उसको कैरी करें व्हेन लीविंग योर हाउस ड्यूरिंग अ फ्लड, जब आप आपको छोड़ें अपने घर को ड्यूरिंग अ फ्लड। एंड डो नॉट टच इलेक्ट्रिकल थिंग्स, किसी भी इलेक्ट्रिकल थिंग लाइक जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं या वायर है, कोई फॉलन वायर है, उसको मत टच कीजिए, स्पेशली जब आप वेट हों यानी गीले हों और स्टैंडिंग वाटर या आप पानी में खड़े हुए हों। दिस विल बी डेंजरस फॉर योर लाइफ। देन आफ्टर अ फ्लड आपको क्या करना चाहिए, कौन सी रेमेडीज़, कौन सी प्लान को फॉलो करना चाहिए। यू मस्ट रिटर्न योर होम ओनली व्हेन यू आर टोल्ड दैट इट इज़ सेफ। आप उस वक्त घर लौटिए जब आपको कहा जाए कि अब पूरा ख़तरा टल गया है, तो देन यू आर अलाउड टू मूव योर होम, टू रिटर्न योर होम। वॉश एंड क्लीन एवरीथिंग इन योर हाउस। ऐसे होता है एवरीथिंग आपकी जो है वो सारी चीज़ें गंदी हो चुकी होंगी, तो आप उसको वॉश कीजिए, क्लीन कीजिए। ड्रिंक वाटर दैट इज़ सेफ टू ड्रिंक, और पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए, दैट इज़ सेफ टू ड्रिंक। जो आप जो साफ़ पानी है उसको, जो सेफ है, जो सही पानी है उसको पीजिए। स्टे अवे फ्रॉम द फॉलन इलेक्ट्रिक लाइन्स। अगर कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स बिकॉज ऑफ फ्लड जो है वो गिर गई हैं, ख़राब हो गई हैं, रिपोर्ट दैम टू द पावर कंपनी। तो आपकी जो पावर कंपनी है जो वो सप्लाइज द पावर, इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है, तो उसको बिल्कुल आप रिपोर्ट कीजिए। अवॉइड बाथिंग और वॉकिंग इन फ्लड वाटर, क्योंकि समटाइम्स ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि जो स्पेशली जो चिल्ड्रन होते हैं वो उस फ्लड वाटर में नहाना शुरू कर देते हैं, स्टिल वाटर में। सो अवॉइड बाथिंग एंड वॉकिंग, अवॉइड कीजिए बाथिंग भी और वॉकिंग भी इन फ्लड वाटर। सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट दे हैव शेयर विद द पीपल, विद द फ्लड विक्टिम्स। किन्होंने शेयर किए थे, ज़ुबैर ने और यंग रिलीफ वर्कर ने लोगों के साथ, और ये बहुत ही अच्छे पॉइंट है। अगर लोग इस पर अमल करें तो दे कैन सेव दैमसेल्फ फ्रॉम फ्लड और फ्रॉम एनी नेचुरल डिज़ास्टर्स और कैलेमिटीज़ या किसी भी एक्सीडेंट से वो बच सकते हैं। सो दिस आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। दिस इज़ क्वाइट इनफ फॉर टुडे एंड आई एम गोइंग टू शो यू द होमवर्क। what will be the homework now? Note down the homework. What is the homework for today? The homework for today is reading unit number 3. Still the same homework, and you will have to look up the meaning of new words. जो new words हैं उसके meanings को देखिए, समझिए, तलाश कीजिए in the dictionary. So this is all for today. Inshallah we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.